my name is Divya Jangid. I am working as assistant professor in Biyani College of Science and Management. Today I am here to discuss the topic performance appraisal. First of all, what do you mean by performance appraisal? It is a systematic evaluation of present and potential capabilities of employee by the superior or professional from outside. It is a process which includes 3 steps. First step, setting of work standard in which the benchmarks of potential qualities can be taken. Second point is accessing or analyzing the actual performance of employee, and third point is providing feedback to employee so that the performance of that employee or deficiency in which the between standard and actual performance can be removed. I can explain the performance appraisal with the help of an example. Jason was working as finance executive in IT company, and when the performance appraisal of Jason was done, a graph of their performance can be made in which the 4 benchmarks can be taken as benchmark or standard. First is your teamwork, leadership, quality of work or communication. Standard point can be of 4. When the actual performance of Jason can be evaluated, the teamwork quality of Jason is above the standard or over excellent quality, and when the communication, when we see the communication part of Jason, it was weak. So that क्या किया गया कि जो कंपनी है उन्होंने उसको कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, एंड देन द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ जेसन कैन बी इम्प्रूव्ड. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस appraisal can be of 2 types. One is your formal and this is your informal. In formal method, a report of 3 months, 6 months or annual report can be made, and then report can be presented toward employee in form of feedback. Feedback can be of 2 types. One is your open and this is your closed. In case of open method, feedback is directly provided to employee. In case of closed, a confidential report can be made and the report can be submitted to top level CEO and not to employee. Next is informal. In case of informal, a direct observation can be done of employee, and regularly for upgradation of the performance of employee, regularly feedback can be provided. Next, why the use of performance can be done? Performance can be used to increase the overall effectiveness of employee, to identify strength and weakness, to identify the future training need, and it is acting as a basis for compensation, promotion, transfer, demotion. Next is your methods of performance appraisal. 2 type of method. One is your traditional and another is your modern. In case of traditional method, first method is your essay type. Essay type के अंदर एक डिस्क्रिप्शन जो है आपके एम्प्लॉय का वो बनेगा, उसके अंदर आपकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जो उनकी स्पेशल क्वालिटीज हैं वो सब डिपिक्ट होंगे. इसका बेनिफिट ये है कि आप एक डिस्क्रिप्शन बना सकते हो और जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हो. बट इसका जो वीक पॉइंट है वो ये है कि जो ग्रेटर आपकी राइटिंग लैंग्वेज है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी और आपकी जो बायसनेस है पर्सनल वो भी शोन हो सकती है. सेकेंड पॉइंट इज योर ग्राफिक रेटिंग. ग्राफिक रेटिंग के अंदर आप क्या करोगे, एक स्केल फॉर्म करोगे इस तरीके से. इट इज 1 to 5 और 1 to 10. इस स्केल के बीच में आप जो भी अपने जो कॉम्पिटेंसीज और क्वालिटीज हैं एम्प्लॉय की उसको ग्रेड करोगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ फाइनल ग्राफ कैन बी मेड जस्ट लाइक दिस. थर्ड पॉइंट इज योर स्ट्रेट रैंकिंग. इन दिस ऑल द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैन बी इवैल्यूएटेड एंड अ स्ट्रेट रैंकिंग बिटवीन बेस्ट टू पुअर कैन बी मेड. In this, the employee whose performance is best can be kept as top level, and the employee whose performance is very poor can be kept at below level. Next, your peer comparison. Peer comparison in which one employee can be compared with all other employees, and then a final report can be made. इसका लॉस ये होगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और जितने भी एम्प्लॉय से आप कंपेयर करोगे हर एम्प्लॉय के अंदर एक अलग क्वालिटी होगी और उसका रीजन होगा ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. नेक्स्ट हो गया क्रिटिकल इंसिडेंट्स. कोई भी आपका अगर स्पेशल कोई इंसिडेंस अराइज होता है आपकी कंपनी के अंदर, जैसे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, उस टाइम पर आपका एम्प्लॉय का किस तरीके का परफॉर्मेंस है वो आप एनालाइज करोगे. नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो मैंने पहले एक्सप्लेन की है. नेक्स्ट इज ग्रुप अप्रेजल. ग्रुप अप्रेजल में आपका क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है उसके अंदर जो इवैल्यूएट कर रहा है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि उसमें वो क्वालिटीज हैं इवैल्यूएट करने की, तो उसके लिए ग्रुप जो है वो बनेगा और वो अप्रेज करेगा. नेक्स्ट मॉडर्न मेथड असेसमेंट सेंटर. इसके अंदर जो आपका ये टॉप ऑपरेटिंग क्लास है वहां से लेकर ये आपका
आपका टॉप लेवल तक काम आता है। इसके अंदर 2 लेवल हायर और इमीडिएट सुपरवाइजर जो है वो अप्रेस करते हैं एम्प्लॉय को। एंड नेक्स्ट इज 360 डिग्री अप्रेजल। इसमें जो आपका फीडबैक है वो प्रोवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, पेयर्स एंड इवन सेल्फ अप्रेजल कैन बी इवैल्यूएटेड। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर जो आपके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स हैं वो कंबाइनली एक मैनेजमेंट आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टैंडर्ड डिसाइड होगा एंड देन द परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी डन। लास्ट मेथड और सेकंड लास्ट मेथड इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरह से होगी, इस तरीके से ग्राफ डिपिक्ट होगा। इसके अंदर ये उन पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया एम्प्लॉयज पे वो आ जाएगा, ये आपका जो उनका आउटपुट था वो आ जाएगा। ये जो कॉलम है वो डिपेक्ट करेगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट आई, इससे बिलो आएगा तो वो आपका अंडर एवरेज अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, इससे ऊपर जो आएगा वो आपकी हाई परफॉर्मेंस है। लास्ट इज योर बैलेंस स्कोर कार्ड। इसके अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी उसमें जो स्टैंडर्ड सेट होगा वो दोनों कंबाइनली शो करेंगे। थैंक यू एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज लॉग ऑन टू www.gurugpr.com।